Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the Unit 2, that is Sports and Nutrition, and Unit 2 of Term 1. Term 1 में Unit 2 जो दिया गया है वो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर दिया गया है. तो टुडे वी आर गोइंग टू explain the sports and nutrition chapter. Let's start. First topic is what is the balanced diet? What is the balanced diet? So balanced diet refer to the intake of edibles which can be provide all the essential food, okay, which is necessary for your body. So we can say here a balanced diet means a diet which consists of all the essential food, which consists of all the essential food means कि एक ऐसा डाइट, एक ऐसा परिपूर्ण डाइट जिसे हम कह सकते हैं जो कि सभी जरूरी आवश्यक तत्वों से भरा हुआ हो, आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण हो. लाइक प्रोटीन is necessary for your body, carbohydrate is necessary for your body, fat is also necessary for your body, vitamin and minerals, as well as water is also necessary for your body. So the appropriate balance of these all, okay. So balanced diet is a diet which consists all of essential food constituents like protein, carbohydrate, fats, vitamin, minerals, water in correct proportional, ठीक है, या फिर करेक्ट प्रोपोर्शंस. माने कि एक अच्छे बैलेंस फॉर्म में अगर ये सब चीज़ें आपको एक ही डाइट में मिल जा रही हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट. So balanced diet is a diet which consists of various type of constitution या फिर various type of components of food. You can say the component of food. So what is the essential component of food? The essential component of food is protein, carbohydrate, fats, vitamins, minerals and water. Means these all are the essential component of the food. So this is known as balanced diet. अभी हम लोग समझ गए कि बैलेंस डाइट क्या है. बैलेंस डाइट एक डाइट है जहाँ पे हम लोग सभी जो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, जो भी इसेंशियल कंपोनेंट एक डाइट के होते हैं, उसका एक बैलेंस, एक प्रपोर्शन, ठीक है, एक मात्रा, एक अनुपात, सही अनुपात अगर एक ही डाइट में मिलती है, दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, देयर इज टू स्मॉल थिंग, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिशन क्या है? अभी ज़्यादातर लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है अबाउट द न्यूट्रिशन. So what is the nutrition? It is a process of taking food and using it for growth and metabolism and repair. If you are taking food and you are using this food for the growth, development and the metabolism and the repairing इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, तो अगर आप इन सब कार्यों के लिए उस फूड को यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है. तो वी कैन से कि न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म use food to
सपोर्ट इट्स लाइफ, ठीक है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ. It includes ingestion, absorption, biosynthesis, catabolism and exertion. तो ये डिफरेंट टाइप के जो फूड आप लेते हो, फूड का जो इनटेक आप करते हो, उस प्रोसेस को फूड अंदर जाने के बाद जो डिफरेंट आपके पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका कैटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये जो भी प्रोसेस है दैट इज नोन एज द बायोकेमिकल प्रोसेस. सो बायोकेमिकल जो प्रोसेस है एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है ऑफ टेकिंग फूड दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन. वही है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ऑफ बॉडी लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर. सो न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप with health. Okay, so we can say easily कि nutrition is the science of the food and its relation with the health. It can be said that nutrition is a science of food which comprises the dynamic process. It is a dynamic process. Remember it is a dynamic process which the consumed by food is digest, nutrients are absorbed and distributed to the tissue for utilizing and wastage and dispose for the body. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट जो यूटिलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट टिश्यू को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड से एब्जॉर्ब करते हो एनर्जी निकलती है. सो ये पूरा प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही आता है. ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड विच इज यूजिंग इट फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म and the repair. So now there are two type of nutrients. Nutrients क्या होते हैं? जो उसके parts होते हैं. Okay. So there is two type of nutrients. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं macronutrients. Okay. So what is the macronutrients and micronutrients? Macro means the large amount. ठीक है, macro is referred to the large amount. So the nutrients which are taken in the large amount, that is known as the macronutrients. So first macronutrient is the carbohydrate. So what is the carbohydrate? Carbohydrate के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं. Most important source of energy. It is the most important source of the energy. ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स अगर प्रोवाइड करता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट कार्बो मीन्स कार्बन, सेकेंड पार्ट हाइड्रे मीन्स हाइड्रोजन एंड थर्ड पार्ट इज एट. कार्बोहाइड्रेट मीन्स it means oxygen. So what is the ratio of hydrogen atom and the oxygen atom? तो 2:1 means 2:1 के अनुपात में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है इन कार्बोहाइड्रेट. लाइक वाटर, H2O वाटर, जैसे 2 हाइड्रोजन के अणु, 1 ऑक्सीजन के अणु, उसी प्रकार से यहाँ भी होता है. एंड वी कैन डिवाइड कार्बोहाइड्रेट इनटू 2 पार्ट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जो
तुरंत ब्रेक डाउन होते हैं एंड दे विल प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जो धीरे धीरे जो है डिप्लेट होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो धीरे धीरे, तात्क्षणिक एनर्जी, तुरंत एनर्जी नहीं देते। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हैं? ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, ग्लैक्टोज हैं, सुक्रोज हैं, मेल्टोज हैं, लैक्टोज हैं। ठीक है, जो भी स्वीट वाले हैं, जितने भी स्वीट मटेरियल हैं, दैट इज नोन एज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन्स। ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज द पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये सब पॉलीसेक्राइड भी जाने जाते हैं। ये जो है इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिकॉज कि दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो ये स्वीट भी नहीं होते हैं टेस्ट में एंड दे आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज कि दे कैन नॉट सिंपली सॉल्यूट इन वाटर। ठीक है, जो वाटर में घुल मिल जाते हैं वो ये जल्दी नहीं हो पाते हैं, और सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में सिंपली। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटीन। प्रोटीन कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट carbohydrate, hydrogen, nitrogen, oxygen and sometimes sulfur. They are very large molecules, so they cannot directly absorb into our blood. Okay, ये directly absorb नहीं होते हैं because कि प्रोटीन जब जाता है अंदर, so they will break down in the form of amino acid. ठीक है, ये कैसे ब्रेक डाउन होंगे? ये अमीनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा इनको डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो दीज अमीनो एसिड आर यूज बाय द बॉडी टू क्रिएट ब्लड, मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर, टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं एक्चुअली जो हमारे देयर आर 23 अमीनो एसिड। ओके, total 23 amino acids are found in our body. Out of these 9 amino acid must be available in the diet. तो जो 9 अमीनो एसिड हैं वो हमारे डाइट में अवेलेबल होने चाहिए या फिर इनका ज़रूरत होता है 9, बट द टोटल अमीनो एसिड इज 23। सो ये यहाँ पे काम करते हैं। एंड बॉडी रिक्वायर 0.36 ग्राम of protein per pound। if you are calculate your weight in a pound, then you require 0.36 gram per pound according to your body weight, and 0.8 means near about 80 grams protein per kilo weight। ठीक है, तो इतना बॉडी को रिक्वायर होता है। ये आप दोनों चीज़ें याद रखना, बिकॉज कि क्वेश्चन विल कम, समटाइम क्वेश्चन विल कम कि बॉडी रिक्वायर ... ग्राम्स प्रोटीन अकॉर्डिंग टू पर बॉडी ग्राम्स प्रोटीन पर पाउंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट। तो आप 0.36 लगाओगे, बट अगर पूछ लिया कि पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, then you will mark 0.8. So 1 gram protein content 4 calorie, 1 gram protein content 4 calorie and 1 gram carbohydrate also content 4 calorie। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इट इज़ आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से? प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, और 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट भी हमें 4 ही कैलोरी ऊर्जा देता है। जो दूध में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, वो केसीन होता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, वो क्रेसीन होता है। ठीक है, प्रोटीन की जो कमी होती है, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रोटीन की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो है मरस्मस, ठीक है, और दूसरा है क्वाशियोकोर। इसे डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट मरस्मर, ठीक है, मरस्मस एंड क्वाशियोकोर। तो ये जो है ये चाइल्ड में पाए जाते हैं। ये जो है मेन डिसीज है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस, मीन्स द बेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द फूड स्टफ। तो ये भी आपको याद रखना है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो कंपोनेंट ऑफ द डाइट इज फैट। तो जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ है वो है फैट, कंटेंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन परसेंटेज ऑफ 76, 12 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्रमशः जो है कार्बन का जो परसेंटेज है फैट में वो 76, ऑक्सीजन का 12 एंड हाइड्रोजन का भी 12। फैट कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स, आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन्स। हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, हमको वार्म रखता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है फैट्स। देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैट्स इन अ डाइट, दैट इज सैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो 3 टाइप्स के जो फैट हैं वो हैं, पहला सैचुरेटेड फैट, उसके बाद होता है सैचुरेटेड फैट होता है, उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। मीन्स वी कैन से कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड में 2 टाइप से होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। सो देखते हैं कि क्या क्या है। सो सैचुरेटेड फैट, this is solid at room temperature, it's found in butter, ठीक है, lard, full fat milk, full fat cheese, high rated meat। जो हम लोग को मिलता है, मीट में मिलता है, बटर में मिलता है, पनीर में मिलता है, these all are the saturated fat, जो simply saturate हो जाते हैं। and अनसैचुरेटेड फैट में 2 टाइप से हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। सो हम लोग देखते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड में क्या है, दिस इज फाउंड इन द सनफ्लावर, कॉर्ड, सोयाबीन। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब सोयाबीन का ऑयल जो होता है, कॉटन सीड ऑयल, दीज ऑल आर आल्सो नोन एज द पॉली अनसैचुरेटेड। ये सब पॉली अनसैचुरेटेड हैं। बट जो मोनो अनसैचुरेटेड हैं वो पीनट्स, ओलिव, कैनोला, इन सब के जितने भी ऑयल्स हैं ये सब मोनो अनसैचुरेटेड के रूप में पाए जाते हैं। तो जो हम लोग के बॉडी के लिए यूजफुल है दैट इज सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है वो यूज होता है, वो इजीली जो है सैचुरेट हो जाता है। तो 1 ग्राम फैट कंटेंट 9 कैलोरीज। सो 1 ग्राम जो फैट होता है वो 9 कैलोरीज जो है आपको ऊर्जा दे सकता है, जो कि जबकि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो 4 कैलोरी। द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज ड्यू टू द इंक्रीजेस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। जो सैचुरेटेड फैट है लाइक घी, मक्खन, बटर, ठीक है, ये सब जो हम लोग खाते हैं सैचुरेटेड फैट है,
ये अगर ज़्यादा मात्रा में आप ले रहे हो तो हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ता है. बट इफ़ यू आर वर्किंग एवरी डे, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे, देन द चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज विल डिक्रीज. ठीक है, तो चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज भी डिक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर. वाटर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा गया है, बिकॉज कि जो हम लोग इन अ डे, एक डे में वाटर का जो अमाउंट लेते हैं वो एक लार्ज अमाउंट लेते हैं, दैट इज नोन एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इसलिए हमको बड़े वाले पार्ट में, बृहद वाले लार्ज अमाउंट में लेते हैं, इस वजह से हम लोग को इसे मैक्रो जो है ग्रुप में रखा गया है. मेड अप बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एवरीवन नो H2O. तो 2:1 में होता है, 2 हाइड्रोजन के अणु, 1 ऑक्सीजन के अणु. Our blood also contains 90% of water. Yes, very nice. 90% ऑफ वाटर ही होता है ब्लड में. तो ब्लड या फिर वाटर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है. न्यूट्रिएंट्स विद द ब्लड एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे वो बाहर करता है, निकालता है, ठीक है, थ्रू दी स्वेटिंग. इट्स आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ब्लड. अ नॉर्मल एडल्ट बॉडी नीड्स 3 to 5 लीटर वाटर इन अ डे. ठीक है, तो 3 to 5 लीटर वाटर की एक दिन में आपको आवश्यकता पड़ती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, थोड़े अमाउंट में आपकी बॉडी चाहिए. फर्स्ट इज मिनरल्स. सो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो सोचते हैं, जो समझते हैं कि मिनरल्स तो जरूरी नहीं है, बट मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. क्यों? क्योंकि मिनरल्स जो है, ज़्यादातर मिनरल्स आपके डाइट में ही मिल जाते हैं. ठीक है, आपके खान पान में ही ज़्यादातर मिनरल्स मिल ही जाते हैं. कुछ वाटर के थ्रू जाते हैं, कुछ वेजिटेबल के थ्रू जाते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स यू कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम योर बॉडी. द अमाउंट about 4% of the body weight is made of minerals. तो जो पूरी बॉडी का 4% होता है वो made up by the minerals होता है. Minerals can be classified into macro and micro. कुछ मिनरल्स को ज़्यादा मात्रा में हमको लेना चाहिए, कुछ मिनरल्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है, इसलिए इसे मैक्रो मिनरल्स के ग्रुप में रखा गया है. लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फास्फोरस, दीज आर इंक्लूडेड इन द मैक्रो मिनरल्स. एंड माइक्रो या फिर ट्रेस मिनरल्स जो छोटे मात्रा में लेना चाहिए वो है आयोडीन. लाइक नमक का जो मात्रा है, आयोडीन से हम लोग पूरा आयोडीन की मात्रा नमक से पूरा करते हैं. आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट, दीज आर include in the micronutrients. And the next micronutrients is second vitamin. विटामिन को भी हम एक छोटे अमाउंट में लेते हैं, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डिसीज. विटामिन जो है हमेशा प्रोटेक्ट करता है डिसीज से. विटामिन्स आर केमिकल्स which are required in a very small amount to keep our body healthy. We can divide vitamin in the two group. First is fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin is ADEK. So ADEK जो विटामिन है वो फैट सोलूबल विटामिन है. एंड वाटर सोलूबल विटामिन इज B and C. तो B and C इज वाटर सोलूबल विटामिन, जिसमें B कॉम्प्लेक्स के काफ़ी फॉर्म होते हैं, जो कि B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 12. तो ये सब होते हैं B के फॉर्म, B कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होते हैं. तो हम लोग दो टाइप से पढ़ सकते हैं विटामिन को, फैट सोलूबल, वाटर सोलूबल. तो याद रखना कि फैट सोलूबल विटामिन इज
A, D, E, K, and water soluble is B and C. Okay. Next is nutritive and non-nutritive component of diet. Sorry, nutritive and non-nutritive component of diet. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा न्यूट्रिटिव है, कौन सा नॉन न्यूट्रिटिव है. ठीक है. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट इज 5. ठीक है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. दीज आर द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट. एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट जो कि नेसेसरी नहीं है वो है फाइबर हैं, रफेज हैं. ठीक है. वाटर हैं, कलर कंपोनेंट्स हैं, फ्लेवर कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. तो कलर एंड फ्लेवर कंपोनेंट्स ये सब होते हैं कि जो आपका स्वाद थोड़ा सा टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, कलर इंक्रीज करने के लिए जो भी इसेंशियल चीज़ें मिलाई जाती हैं, दीज आल कम अंडर द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट. सो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट 5 है ओनली. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. एंड वाटर is present in a non-nutritive component list. Water is an essential component of diet, but this is included in the list of non-nutritive component of diet. ठीक है. वाटर भी उसमें दिया गया है. Now next point is the meaning of the healthy weight. What is the meaning of the healthy weight? So healthy weight क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि healthy weight है क्या. तो usually an individual who has a healthy weight, lead a healthy life with a reduced या फिर with a less risk of disease. ठीक है. तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ को लीड करते हो, एक हेल्दी लाइफ को जी रहे हो with the less chances of the disease, then it is known as a healthy weight. अगर एक उस वेट के साथ जी रहे हो जिसमें कि आपका जो है डेली रूटीन वर्क या फिर यू आर डूइंग वेरी वेल योर वर्क. ठीक है. विद द लेस चांस ऑफ डिसीज, सो इट इज नोन एज द हेल्दी वेट. ठीक है. वो वेट आपका हेल्दी वेट माना जाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ, इफ योर बॉडी वेट is between 19 to 25. If your body weight is between 19 to 25, like body weight, not body weight, your BMI, body mass index. ठीक है. बॉडी मास इंडेक्स आपका अगर 19 से 25 है, देन इट इज़ नोन एज द हेल्दी बॉडी वेट. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्दी बॉडी वेट बोलते हैं. तो हेल्दी बॉडी वेट का आपको अगर BMI और एवरीथिंग आपको जानना है कि कैलकुलेशन ऑफ द BMI एंड द कैलकुलेशन ऑफ द वेस्ट हिप रेशियो, सो यू विल गो थ्रू द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11. क्लास 11 के आप चैप्टर नंबर 2 में चले जाइए. वहाँ पे मैंने काफ़ी एक वीडियो बनाई है, उसमें दिया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट द BMI, हाउ यू विल कैलकुलेट द वेस्ट हिप रेशियो. और BMI का चार्ट भी वहाँ पे दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक BMI है तो आपका अंडर वेट है, कहाँ से कहाँ तक है तो आप यू आर बिटवीन अ गुड वेट कैटेगरी, एंड ओवर वेट कहाँ पे आता है ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3. ठीक है. तो आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड टू कंट्रोल द हेल्दी बॉडी वेट. ठीक है. मेथड क्या क्या है, हाउ यू कैन कंट्रोल योर हेल्दी बॉडी वेट. सो फर्स्ट इज सेट एन एप्रोप्रिएट गोल फॉर लूजिंग द बॉडी वेट. फर्स्ट वी शुड सेट एन एप्रोप्रिएट गोल. By setting an appropriate goal, you will lose your weight accordingly and easily. Lay stress on the health, not on the weight. तो हमें वेट पे स्ट्रेस नहीं करना चाहिए. ठीक है. बिकॉज इट इज अ वेल
known fact that losing weight for the health rather than appearance can make it easy to set reasonable goals. ठीक है, listen carefully कि losing weight for the health rather than appearance can make it easy and set reasonable. ठीक है, तो हमें लेस कहाँ पे करना चाहिए? हेल्थ पे करना चाहिए, ना कि वेट पे करना चाहिए. कट योर कैलोरीज. यस, कीप अ प्लान ready to get back on the track if your body weight beginning to exceed require a limit. ठीक है, मीन्स कट योर कैलोरी. जो कैलोरी होता है उसे आप कट करिए, उसको आप रिड्यूस करिए. एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए. ब्रिंग आउट सपोर्ट. जो सपोर्ट आप लेते हैं, जहाँ पे भी आपका सपोर्ट है, उस सपोर्ट से बाहर आइए. उस सपोर्ट को आप कम कीजिए. यौगिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व करिए इन योर डेली लाइफ. अवॉइडिंग फैटी एंड फास्ट एंड जंक फूड. जो फैटी, फास्ट और जंक फूड है, बना बनाना खाना, बाहर का खाना है, इसको आप अवॉइड करिए. अवॉइड ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग आपको अवॉइड करना पड़ेगा. डोंट ईट स्मॉलर मील फ्रिक्वेंटली. बार बार जो दिन भर में कई बार हम लोग ले लेते हैं स्मॉलर जो है मील्स फ्रिक्वेंटली लेते हैं, उसको भी हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा. ठीक है, एक टाइम सुटेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए. अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड. जो कार्बोहाइड्रेट के रिच फूड हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मात्रा में है जिस फूड में, उसको अवॉइड करना है. डोंट स्किप मील. स्किप मील नहीं करना है. कि हम ऐसा कभी कभी करते हैं कि दोपहर का भोजन छोड़ दो या फिर शाम का भोजन छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना. डोंट स्किप मील का मतलब ये है कि आपको भोजन नहीं छोड़ना है, आपको भोजन की मात्रा को थोड़ी कम करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है. ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो ये भी आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल करने वाला है. बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ द कैलोरी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कैलोरी. जो खर्च हो रही है कैलोरी और जो आप इनटेक कर रहे हो, इसके बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाइए. ये सब रूल्स आप फॉलो करके एक अच्छा हेल्दी वेट आप गेन कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग. व्हाट इज द पिटफॉल? वी all are aware that shedding or losing weight is not a simple as it sound. जैसा कि ये सुना जाता है वैसा सिंपल नहीं है. एक शेडिंग या फिर वेट को कम करना जितना सिंपल कहने में लगता है उतना सिंपल है नहीं ये चीज़ एक्चुअली में. बट जो फैक्ट है, देयर आर सम पिटफॉल डेंजर्स ऑफ ईटिंग दैट कीप अस अवे फ्रॉम द लॉसिंग या फिर रिड्यूसिंग वेट. कुछ डेंजर्स हैं, कुछ जो है पिटफॉल्स ऑफ द डाइटिंग हैं, जो कि हम लोग को वेट कम करने की अपेक्षा जो है उसमें डेंजर सिद्ध हो सकते हैं. लाइक कि अगर जो पिटफॉल हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए यहाँ पे जो मेजर पिटफॉल्स हैं उस पर मेजर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग वी कैन से कि मेजर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग जो है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर टू बर्न कैलोरीज. वी नो दिस साइंटिफिक फैक्ट बट इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर. कम खाइए, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए अपने कैलोरी को बर्न करने के लिए. ये साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन बट इसको जो है डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, प्रयोग करना, इसको प्रत्यापित करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो मेजर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या क्या है? एक्स्ट्रा रिडक्शन ऑफ कैलोरी. जो एक्स्ट्रा रिडक्शन ऑफ द कैलोरी है वो intake of the calorie is reduced extremely. Research studies indicate that 1800 calorie a day
cannot meet all nutritional requirement of an individual. If you reduce intake of the calorie, it will result a huge loss of body weight. It can be dangerous for you. ठीक है? Means extra reduce if you are reducing extra body weight या फिर extra calorie, then it should be it will be danger for your body weight. So extra reduction of calorie will be sometime danger. रिस्ट्रिक्शन और सम न्यूट्रिशन, तो कुछ न्यूट्रिशन पे जो रिस्ट्रिक्शन किया जाता है उसको हमें पहले देखना चाहिए. एक डाइटिशियन का, एक स्पेशलिस्ट जो पर्सन है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उसके हेल्प से हम लोग को करना चाहिए. एक्स्ट्रा रिड्यूसन नहीं करना चाहिए कैलोरी का. ये पता लगा जितना एक्सपेंड कर रहे हो उतना भी इंटेक नहीं है आपका, तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन हो जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे, आप वीक हो जाओगे, वीकनेस आएगी, ड्रिजलिंग आने लगेगी, चक्कर आना. ठीक है. स्किपिंग मील, समटाइम सब लोग बोलते हैं कि जो मील को स्किप करो. ठीक है, मील को स्किप करो उससे बॉडी वेट घटता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. अगर आप मील को स्किप कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम यू विल टेक मोर. ठीक है, आप ज़्यादा लोगे, डाइट को आप ज़्यादा लोगे. स्किपिंग मील इज नॉट गुड फॉर रिड्यूसिंग द वेट. यू कैन टेक योर लंच, योर डिनर एट अ परफेक्ट टाइम बट इन अ लिटिल अमाउंट. तो थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए. ठीक है, स्किप नहीं करना चाहिए मील. इनटेक ऑफ द कैलोरी थ्रू द बेवरेज. ठीक है, जो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि थ्रू द बेवरेज, ठीक है, जो पेय पदार्थ हैं उसके द्वारा जो इनटेक लिया जाता है. इफ यू वांट टू लूज योर वेट, मोस्ट प्रोबेबली यू ले स्ट्रेस ऑन नॉट टू ईट मोर एंड नॉट ऑन व्हाट यू ड्रिंक. इन फैक्ट beverage, coffee with cream and sugar, sweetened juice and soda really contribute to weight. क्या है कि इंटेक ऑफ द कैलोरी जो हम लोग बेवरेज के माध्यम से लेते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, जो स्वीट होते हैं, जो जूस होते हैं, ये सब के माध्यम से ये होता है कि इंटेक ये सब लो और डाइट मत लो, डाइट छोड़ दो. तो ऐसा नहीं है. ये सब भी बेवरेज भी कहीं ना कहीं हमको वेट गेन कराते हैं. तो हमेशा बेवरेज पे ही नहीं चलना चाहिए. जो पेय पदार्थ हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं वेट गेनिंग में. अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करना. इनटेक ऑफ द लेवल, नॉट एक्सरसाइजिंग. एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हो, आप डाइटिंग करके सोच रहे हो कि वी विल रिड्यूस आवर वेट, देन इट इज नॉट. ठीक है, एक्सरसाइज इज नेसेसरी. So now food intolerance. So what is the food intolerance? Food intolerance is the, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि it is a allergy. ठीक है, ये क्या है? एलर्जी है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है. फूड इंटॉलरेंस इज अ टर्म यूज्ड वाइडली फॉर varied physiological responses associated with the particular food. Varied physiological responses is a physiological response. क्योंकि क्या होता है इसमें, इंटॉलरेंस माने होता है एक क्षमता. इफ योर बॉडी इंटॉलरेंस, लाइक कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटॉलरेंस आपका नहीं है किसी भी पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने का, तो उसे को हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस. ठीक है. इन द अदर वर्ड, फूड इंटॉलरेंस मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंड absorbed by our digestive system. If our digestive system is not absorbing some type of food या फिर some type of element of the certain food, then we can say this is the food intolerance. वो क्या होता है? फूड इंटॉलरेंस होता है.
कभी कभी किसी चीज़ से हम लोग को एलर्जी होती है, तले भुने चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी किसी को स्वीट से एलर्जी होती है, किसी किसी को जो है खट्टे से एलर्जी होती है। तो ये इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ईजिली एब्जॉर्ब या फिर प्रॉपरली उसका प्रोसेस नहीं हो पाता है डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। तो व्हाट इज द केस ऑफ फूड इंटॉलरेंस? इंटॉलरेंस के जो केस होते हैं, क्या केस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? इट इज केस्ड बाय द पार्ट और complete absence of the activity, the enzyme responsible for the breaking down and absorbing the food element. तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी एंजाइम हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, उनका प्रॉपर अब्सेंस हो जाता है, तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। या फिर किसी चीज़ से एलर्जी भी होती है आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभी कुछ होता है कि somebody is not doing वर्क प्रॉपरली, मीन्स फिजिकली वर्क, अगर आप डेली नहीं कर रहे हो, डेली कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो उसमें, तो भी फूड इंटॉलरेंस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? स्टमक पेन होने लगेगा, डायरिया होने लगेगी, वोमिटिंग होने लगेगी, ठीक है, हार्ट बर्न होने लगेगा, जो कलेजा जलता है, लाइक कि पेट में जैसे लगता है जलन होने लगती है, क्रैम्प होने लगता है, नर्वसनेस होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है। तो ये सब होते हैं जो अपच से हो जाते हैं। अपच भी होता है, तो दैट इज अपच इज आल्सो अ टाइप ऑफ फूड इंटॉलरेंस। जो फूड इंटॉलरेंस होता है, अपच होता है, वही होता है, ठीक है। अपच वो चीज़ उठ नहीं पाती है। नाउ फूड मिथ, व्हाट इज द फूड मिथ? सो फूड मिथ, there are various types of food myth which are prevalent not only in India but all over the world, that what to eat, when to eat, how to eat, ठीक है। such question which usually confuse more of the individual। तो ये सब क्या है? फूड मिथ है, फूड की जो गलत फहमियाँ हैं, वी कैन से कि आवर जो है मिसकंसेप्शन अबाउट दी फूड, ठीक है। तो वो क्या क्या है? मोस्टली जो मेन कॉमन है, पोटैटो मेक यू फैट। जो पोटैटो होता है, लोग बोलते हैं कि आलू हमें क्या करता है? फैट करता है, ठीक है। ये होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आलू खाने से आप फैटी होगे। फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। एक कहावत है, एक जो कहा जाता है कि फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू लूजिंग वेट। तो फैट फ्री लेबल्ड प्रोडक्ट कैन लीड यू टू वेट गेन। इन फैक्ट दीज फूड्स हैव मोर कैलोरी, approximately these products have the same number of calorie in comparison to other regular food। जो फैट फ्री प्रोडक्ट हैं उनके पास उतना ही कैलोरी होता है जो अदर रेगुलर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके पास होता है। तो वो भी उतना कैलोरी कंटेंट करते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मिथ है। एक्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। एक जो है लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है तो उसको अवॉइड कर, नहीं। इफ यू आर वर्किंग देन एग विल प्रोवाइड यू प्रोटीन, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग देन यू कैन टेक, ऐसा नहीं है कि आप एग को अवॉइड करो। नेक्स्ट इज द ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू ईट, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, यहाँ पे होगा ईट नहीं है, यहाँ पे फैट होगा, वहाँ जाइए ना। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर खाना खाते समय हम लोग पानी पी रहे हैं या फिर कुछ भी पी रहे हैं तो वो आपको फैट बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है। डोंट टेक मिल्क
इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। लोग बोलते हैं कि आफ्टर फिशिंग इट जो है, अगर यू आर टेकिंग मिल्क देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सो इट्स नॉट अ साइंटिफिक थिंग। इंटॉलरेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस। तो किसी किसी को होता है कि अगर आफ्टर टेकिंग फिश या फिर आफ्टर ईटिंग फिश इफ यू आर टेकिंग मिल्क इमीडिएटली, देन कभी कभी फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, उसको उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वहाँ पे जो है उसको अपच हो जाता है। तो उसीलिए हम लोग कहते हैं, तो वो सबके लिए नहीं होता, वो तो किसी किसी इंडिविजुअल को होता है। तो ये गलतफहमी है कि अगर मिल्क के बाद, सॉरी, ईटिंग फिश के बाद हम मिल्क लेते हैं तो जो है ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। यस, एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर, लेकिन एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको खाना बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा खाना, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टार्व योर सेल्फ इफ यू वांट टू लूज योर वेट। अगर आप अपने वेट को लूज करना चाहते हैं तो स्टार्व योर सेल्फ। सो दीज ऑल आर द मोस्ट कॉमन फूड मिथ, ठीक है, इन इंडिया also in world. So this chapter has been completed. Now in our next video we will discuss about the chapter number 3 or unit number 3, that is yoga and lifestyle. But yoga and lifestyle is included in term 2, तो यहाँ पे योगा एंड लाइफ स्टाइल का बात नहीं होगा, बिकॉज कि फर्स्ट वी विल गो थ्रू द टर्म 1, आई विल कंप्लीट फर्स्ट टर्म 1, देन आई विल कम इन टर्म 2। तो टर्म 1 को कंप्लीट करेंगे, एंड यू कैन डाउनलोड चैप्टर वाइज नोट्स आल्सो फ्रॉम द चैनल। इफ यू वांट टू ज्वाइन our telegram channel then you can join, because कि टेलीग्राम जो चलता है वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल सकता है, यू कैन टेक एवरीथिंग। सो टेलीग्राम चैनल का जो मैं टेलीग्राम जो हमारा चलता है वो इस नंबर से ही चलता है, आप यहाँ को इस नंबर को सेव कर लो और इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। You can send me message, sir I want to join the physical education class 11th and 12th batch, then you can join. You can send me message on this number, telegram. Okay, so this is my telegram channel. Thank you so much. Please subscribe this channel, share this channel, and give some comment if you want to improve yourself. Then please read carefully, and with the help of notes, with the help of channel, or you can ask me any question on this number. This is my telegram number, I will respond to you. Okay, thank you so much, thanks a lot.